Hi everyone, welcome back to the channel and my name is Sonia. If you're watching this channel for the very first time, let me introduce myself to you. As you already know my name, I am an IELTS and PTE trainer and I have been teaching since pretty long now. I have taken GT as well as academic IELTS many other times, and every single time I have got perfect 9 scores in reading and overall 8.5 score. Apart from IELTS and PTE, I have also taken exams like GRE, GMAT, TOEFL, AFCAT, CDS and CAT. My overall percentile for CAT was 89 point something, but that was a long ago, right? So that was all about me. And as you are the first timer, and if you're watching this video for the very first time, or if you have visited this channel for the very first time, let me go ahead and tell you that this is let me also talk about an academy platform here. And before I do that, I would like to tell you that after this particular class, if you want to get in touch with me, this is what my Telegram channel and group's name is. And the channel and the group something looks like this. It has a black and a green white color logo. So you people can definitely go ahead and join this Telegram group, because this Telegram group will give you the links to all the upcoming free live classes. Okay. Secondly, the group will also very active in sending you the latest IELTS related material. Okay, so please go ahead and join this particular Telegram channel as well as group. And if you have any doubts, definitely you can go ahead and get in touch with me here, and you may ask your queries here. Right now, let's talk about Unacademy's platform. So Unacademy, if you haven't heard about it before, Unacademy is one of the India's largest platform, which will help you preparing for your competitive exams like IELTS, IIT-G, NEET, UPSC and many other, right? So Unacademy is not only the platform wherein you can prepare for IELTS, but it will help you with any other Indian competitive exam also, like if your siblings or if your friends are also interested, right? So Unacademy does provide two different types of classes. One is the paid one and the another one is unpaid, which are called as special classes. These are taken by all the top trainers and that is absolutely free of cost. If you want to go ahead and subscribe, like if you want to go ahead and buy the subscription, or if you want to attend the free live classes, there are few initial steps that you need to go ahead and do if you are already not a registered member for Unacademy. Okay, so the first thing is that you either have to download the Unacademy's learner app through iOS or Android Play Store, or you can directly go to the website and log in. Like if you are the first time user, it will ask you for some basic details of yours, like name, email, location, mobile, and at the end an OTP to verify all the details. Once you have verified all the details, you are now a registered member for Unacademy. And next time whenever you are login, you are only and only going to be asked by your mobile number and the OTP. It is as simple, right? So now once you are registered, after that the next step is gonna be selecting a goal. Goal means which particular exam you people are preparing for, right? If you are preparing for IELTS, let's say select your goal as IELTS, and under IELTS you will find top 10 educators, right? And you can find my profile as well with my complete name, which is Sonia Luthra. Okay, once you find my profile, go ahead and follow it if you haven't done that already. After following it, scroll a little down and you will see a category called as special class. Special class are the ones which are absolutely free of cost, but you will have to unlock it.
To unlock, it will be asking you for a referral code, and the referral code is this, SONIA10. Once you apply this referral code, you will be able to unlock all the previous, present and the future free live classes, and you can definitely go ahead and enroll yourself for that. Okay, so this was all about the free classes. But if you are somebody who is looking for a more structurized pattern to start your preparation, or if you are looking for a crash course, right, in both the case I would suggest you to please go ahead and buy the subscription plan. There are many benefits to buy the subscription plan with Unacademy. Let's start with the very first benefit, which is the monetary benefit. The price, or you can say the fees for the course, is such a nominal price that if you go to any local institute or any other online platform, they are going to charge you hefty amount of 6K to 12K for a month, right? But when it comes to Unacademy, plans are here. Like for a month there is only 2,700. For 2 months the price is going to be only 5,000. Similarly, for a 3-month course the price is only 6,750. You can also avail a 10% discount over and above this amount, okay, by applying the referral code. The referral code is going to be the same, SONIA10, which you use to unlock your free classes, right? So after a 10% discount, the price will be 2,430, only 4,500 for 2 months, and this will be something around 599, which is almost like 6,000 rupees for 3 months, which is pretty nominal, like 2K per month, right? The second benefit that I would like to talk about is that under the Unacademy platform you can see all the India's top educators under one roof. So for a 2K per month you can get trained under trainers like Sonam Sandhu ma'am and myself, who all are India's top educators, right? Third benefit is, like, every single month there are 20 plus courses which will be launched. Like every Wednesday we tend to launch a new batch course. Batch course means all the 4 modules will be covered, right? Apart from the batch courses there are individual courses also, so there will be in total 20 plus courses every single month, right? Apart from that, we take care of general as well as academic both. There will be more than 10 plus mock tests every month. There will be live speaking sessions. There will be writing evaluations, as well as dedicated doubt solving classes. So all these benefits you will be getting it only for 2K per month if you subscribe us for 3 months, right? Or if you subscribe us for 1 month, the price would be 2,430 rupees only, which is as equivalent to the price that you spend when you go outside with your friends for only one time, right? Like if you go to restaurant, you buy with your friends, you buy pizzas, burgers, cold drinks and whatnot. You spend more than this in a day. And here for a month you will be getting trained by the India's top educators, right? So choice is completely yours. So that was all about the Unacademy's benefits. And if you are looking forward to attend any of the classes, whether it is paid or it is unpaid, do not forget to apply the referral code. This referral code will help you unlock all the free classes, or when it comes to paid courses it will give you a 10% discount, okay? So if you have any other doubt regarding to your IELTS preparation or regarding your scores that you might have scored in the previous exam, this is what my Telegram group is like. So please go ahead and get in touch with me here, right? And this is my code. Do not forget to apply the code. Okay, now let's quickly move to the today's content. So today's topic is all about the correlation between writing and the reading module. Most of the trainers will tell you कि reading में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, but they will never ever tell you कि देखो बच्चे आपको राइटिंग मॉड्यूल आता है तो रीडिंग मॉड्यूल भी इजीली हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं.
स्पेशली रीडिंग मॉड्यूल का जो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन होता है, मैच द हेडिंग्स आफ्टर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ऑफ कोर्स, ये क्वेश्चन अगर आपको राइटिंग में ऐसे लिखने आता है तो डेफिनेटली आप जो है ये रीडिंग मॉड्यूल का ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली. ओके, सो मैं आप लोग को यहाँ पे ये बता देती हूँ कि आज की जो क्लास है इसका एजेंडा बेसिकली रहेगा क्या. ओके, सो सबसे पहले वी विल स्पेसिफिकली बी टॉकिंग अबाउट हेडिंग मैचिंग क्वेश्चन, ओके, इन द रीडिंग मॉड्यूल, and how exactly this question is related to your writing module, especially the task 2. okay, बहुत सारे ट्रेनर्स को ये खुद ही नहीं पता होता तो वो आप लोगों को क्या बताएंगे. ठीक है, तो आज हम यही समझेंगे. सो फर्स्टली देखो, स्टार्ट करते हैं राइटिंग के एक बेसिक से स्ट्रक्चर से. ठीक है, कि राइटिंग का आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड देन वी विल ग्रेजुअली मूव टू द राइटिंग मॉड्यूल. ओके, सो आप जब कोई भी एसे लिखते हैं, ओके, व्हेन एवर यू राइट एन एसे, आपका एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो एसे होता है वो ये होता है दैट योर एवरी एसे शुड बी डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 4 पार्ट्स. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पैराग्राफ 1, मेन बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन. आप चाहे तो एक्स्ट्रा बॉडी पैराग्राफ बना सकते हैं, वो मैंडेट नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है. ठीक है, लेकिन ये 4 पार्ट्स जो हैं वो मैंडेट हैं. अब मैं अगर फर्दर बात करूं तो जैसे आपका इंट्रोडक्शन है, राइट, इंट्रोडक्शन डिवाइड होता है फर्दर 3 पार्ट्स में, हुक लाइन, पैराफ्रेजिंग, थीसिस स्टेटमेंट. अब समझ लेते हैं हुक लाइन क्या होती है. हुक लाइन एक जनरल लाइन होती है जिसको हम कभी कभी बैकग्राउंड लाइन भी बोलते हैं, किसी भी आपके क्वेश्चन के टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपको टॉपिक दिया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन दिया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, राइट, अगर आपको टॉपिक दिया है टेक्नोलॉजी के ऊपर एंड आपको एक जनरल लाइन लिखनी थी, तो हम एक ऐसी लाइन लिख सकते थे दैट फ्रॉम लास्ट 2 to 3 decades द टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड द पीपल लिव देयर लाइफ. ये एक बहुत ही बैकग्राउंड स्टेटमेंट है, न्यूट्रल स्टेटमेंट है, जिसका फिलहाल मेरे क्वेश्चन और मेरे ओपिनियन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट ये एक टॉपिक से रिलेटेड एक जनरल लाइन थी जो मेरे ओपिनियन पे कोई इम्पैक्ट नहीं कर रही. तो इसको हम बोलते हैं हुक लाइन, और हम अपना एसे इसी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फिर बात होती है पैराफ्रेजिंग की. पैराफ्रेजिंग का मतलब जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है आपको उसको खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, बट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. अगर आपको नहीं पता पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं, आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में जाइए. अंडर माय प्रोफाइल मैंने पैराफ्रेजिंग का पूरा 1 आवर का एक सेशन लिया है जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि क्वेश्चन को कैसे पैराफ्रेज करते हैं. ठीक है, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं. अगर वो क्लास देखने के बाद भी आपको कोई भी डाउट रहता है, प्लीज़ आप कमेंट्स पे लिखिए कि ये डाउट है. आई विल डेफिनेटली बी एबल टू हेल्प यू विद दैट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर मैं थीसिस स्टेटमेंट की बात करूँ, सो थीसिस स्टेटमेंट इज योर ओपिनियन स्टेटमेंट. वो स्टेटमेंट जहाँ पर आप अपना क्रिस्टल क्लियर ओपिनियन बता रहे हैं कि आप इसके फेवर में हैं या इसके अगेंस्ट में हैं, उस लाइन को हम थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं. सो इन शॉर्ट, आपका कोई भी इंट्रोडक्शन जो पैराग्राफ होता है एसे, वो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, जिसमें से हुक लाइन इज ऑप्शनल. आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते. इससे कोई आपके एसे के मार्क्स पे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन पैराफ्रेजिंग और थीसिस, दीज आर द 2 थिंग्स विच आर मैंडेट. ओके, सो इंट्रोडक्शन इस पे डिवाइड हो गया. अगर अब मैं बात करूं बॉडी पैराग्राफ 1 की, बॉडी पैराग्राफ 2 की, अगर आप और भी बॉडी पैराग्राफ बना रहे हैं, तो एवरी बॉडी पैराग्राफ शुड बी फोकस्ड ऑन ओनली एंड ओनली 1 आइडिया. ओके, सो किसी भी बॉडी पैराग्राफ में एक सेंट्रल आइडिया होना चाहिए, जिससे हमने क्या बोला, मेन पॉइंट. अपना मेन पॉइंट, फिर उसी पॉइंट को आपने नेक्स्ट 1 to 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, फॉलोड बाय सपोर्टिंग एग्जाम्पल, एंड देन you will be summarizing the entire passage or concluding the entire passage in the last line. So this is the way your every body paragraph should be built. Okay, last but not least, हमारा जो conclusion आता है, if I talk about the conclusion part, so conclusion part में basically होता क्या है, कंक्लूजन में आपको, अगर आपने 2 बॉडी पैराग्राफ बनाए हैं, तो जो आपका पॉइंट नंबर 1 था एंड जो आपका पॉइंट नंबर 2 था, जो मेन 2 आइडियाज थे,
आप उन्हीं को कंक्लूड करेंगे, उन्हीं को समराइज करेंगे. You will not be adding a new idea in the conclusion. Okay, no addition of a new idea in the conclusion. So that is all about your basic structure of any essay. Okay, so हमें I think इसमें तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पे देखो बहुत ही क्लियरली समझनी पड़ेगी कि जो चीज़ें मैंने आपको बोला कि ये जो राइटिंग और रीडिंग में क्या लिंक है, उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा. देखो हमने टास्क 2 का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया. Now let's move to the heading matching question. इसका जो मेन एम क्या होता है, what is the aim of the question? अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एम ये होता है कि अब हर पैरा का जो आपको एक लेंदी पैसेज दिया गया है उसके अंदर जितने भी सेक्शंस हैं या फिर उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे पैराज हैं, हमें हर एक पैरा का सेंट्रल आइडिया ढूंढना है. ठीक है, सेंट्रल आइडिया बोले तो पॉइंट, हमें पॉइंट ढूंढना है. जो मैंने अभी अभी आपको समझाया था ये हमें ये ढूंढना है पॉइंट. ठीक है, तो अब आपको आई थिंक थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि वाई आई एम रिलेटिंग राइटिंग विद रीडिंग. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा एम ही यही है कि हमें सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराज ढूंढने हैं. उसके लिए हमें देखो राइटिंग स्टाइल बहुत बहुत समझना ज़रूरी है अपने किसी भी एसे का, क्योंकि जो रीडिंग पैसेज है ऑफ कोर्स वो भी किसी राइटर ने लिखा ही है ना. इट इज़ ऑल्सो अ एसे मे बी रिटन बाय सम पर्सन. सो वहाँ पर भी देखो ये जो पैटर्न हमने देखा ना कि एक सेंट्रल आइडिया होगा, उसी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन होगी, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल होगा और उसी को समराइज किया होगा. सो आपके जितने भी रीडिंग पैसेजेस होते हैं ना ये भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं रिगरसली. तो इसीलिए जनरली आपके ट्रेनर्स आपको बोलते हैं कि हेडिंग मैचिंग क्वेश्चन के लिए आप फर्स्ट लाइन पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा. बट आई पर्सनली डू नॉट सजेस्ट दैट. I recommend you reading the first line. I recommend you reading the last line also. Read the first line. आप लोग फर्स्ट लाइन रीड करिए, ठीक है, फिर लास्ट लाइन को भी रीड करिए. बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसको पढ़ के मैं आंसर दे दूंगी या इसको पढ़ के मैं आंसर दे दूंगी. ये जो बीच वाला पार्ट है आपका पैरा ए का या पैरा बी का, आपने इसको क्या करना है, स्कैन करना है. ठीक है, वैसे तो ये जो मैचिंग हेडिंग का जो क्लास है मैंने कल ही एक पूरी स्पेशल क्लास ली थी 1 आवर में, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोग को ये बताया था कि ये मैचिंग हेडिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है. अगर आपने नहीं देखी प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट पर्टिकुलर क्लास ऑल्सो. इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. ओके, सो अभी जो चीज़ हम समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं. देखो राइटिंग का जो एसे होता है उसका जो बॉडी पैराग्राफ होता है उसमें भी PEES होता है. ठीक है, अगर अब मैं रीडिंग के क्वेश्चन में जाऊंगी तो रीडिंग में भी पैराज होते हैं, उन पैराज के भी आपको यही पैटर्न मिलेगा. सो इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप फर्स्ट लाइन पढ़ो और लास्ट लाइन पढ़ो, क्योंकि यहाँ से आपको फर्स्ट लाइन से उसका मेन पॉइंट पता चलेगा. बट टू कंफर्म कि हाँ ये मेन पॉइंट ही था, हम एक बार समराइज भी देख लेते हैं, क्योंकि इसी चीज को एंड में कंक्लूड किया होगा. और बीच वाले पार्ट को हम सिर्फ स्कैन कर लेंगे टू गिव अ 100% कॉन्फर्मेशन टू आवर सेल्स कि हाँ बिल्कुल सही ढूंढा है मैंने. ठीक है जी. तो इसी तरीके से आपका जो राइटिंग और जो रीडिंग मॉड्यूल है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से. आज मैं स्पेसिफिकली ना देखो आप लोग को 3 टाइप ऑफ एसेज के बारे में बात करके एक्सप्लेन करूंगी कि रीडिंग क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं. अग्री डिसअग्री, बोथ द व्यूज, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपके अग्री डिसअग्री की. अगर मैं अग्री डिसअग्री की बात करूं, इसका पैटर्न देखो ये रहता है. हमने इंट्रो लिखा, इंट्रो के बाद अगर मैं फेवर में थी किसी चीज़ के तो बॉडी पैराग्राफ 1 में भी पॉजिटिव जाएगा, बॉडी पैराग्राफ 2 में भी मेरा टोन पॉजिटिव जाएगा और कंक्लूजन में तो यही दोनों पॉइंट समराइज होंगे. ठीक है, अब मान लो अब इसको रिलेट करते हैं आपके हेडिंग क्वेश्चंस में. आपको बहुत सारी हेडिंग्स दे रखी हैं यहाँ पे. ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे एक हेडिंग थी जिसमें लिखा था सेकेंड एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी. दिस एंटायर पैसेज ऑफ रीडिंग वाज ऑन टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पे बोला सेकेंड एडवांटेज. अब मुझे यहाँ पे क्लियरली पता था, देखो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में मुझे फर्स्ट एडवांटेज दे रखा था. ठीक है, और अब यहाँ पे इन्होंने बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखा, स्टार्ट किया इन एडिशन. इन एडिशन करके यहाँ पे ना एक कनेक्टर लगाया. सो मुझे क्लियरली पता है इन एडिशन एक ऐसा कनेक्टर है जो सेम बात को आगे बढ़ाने के लिए यूज होता है. तो मुझे पता है कि टोन अभी बिल्कुल सेम ही चल रही होगी. अगर यहाँ पॉजिटिव थी और मैंने आगे इन एडिशन लिख के नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करा है
तो आगे भी मैं पॉजिटिव टोन कंटिन्यू करूंगी। अगर यहाँ नेगेटिव टोन थी और मैं फिर इन एडिशन फर्दर मोर लगा रही हूँ, मोर ओवर लगा रही हूँ, तो आगे नेगेटिव टोन ही मेरी कंटिन्यू होगी। तो मुझे क्लियरली पता है कि फर्स्ट पैराग्राफ में तो फर्स्ट एडवांटेज की बात हो रही है और सेकेंड में इन एडिशन लिखा है, तो सेकेंड एडवांटेज मुझे सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में ही मिलेगा, करेक्ट। सो इस तरीके से मैं अपना टाइम सेव करते हुए इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरी सिंगल लाइन इन द पैसेज, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर बेसिकली आपका टाइम सेव कर रही हूँ कि मेरे को अब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना। आई नो सेकेंड एडवांटेज है, मुझे दिख रहा है उसका राइटिंग स्टाइल कैसा है कि वो पॉजिटिव 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 कंटिन्यू हो रहा है, तो आई विल डेफिनेटली गो टू द थर्ड पैराग्राफ, क्योंकि फर्स्ट इंट्रो होगा, फर्स्ट पैराग्राफ में बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट एडवांटेज होगा, फिर सेकेंड वाले बॉडी पैराग्राफ में सेकेंड एडवांटेज होगा। यही अगर मान लो बॉडी पैराग्राफ 2 में इन एडिशन की जगह यहाँ पे मैं ऑन द कॉन्ट्रेरी लिख देती, तो मुझे क्लियरली पता चल जाता कि बॉडी पैराग्राफ 1 में अगर पॉजिटिव बात हो रही थी तो बॉडी पैराग्राफ 2 में नेगेटिव बात हो रही होगी। अगर यहाँ कोई हेडिंग होती डिसएडवांटेज वाली, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता था कि थर्ड पैरा में मुझे डिसएडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ऑन द कॉन्ट्रारी लिखा था, टोन चेंज हो रही थी। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव चला जाता। सो ये जो लिंकर्स आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो लिंकर्स हैं, लिंकर्स जो हम अपने राइटिंग एस्से में यूज करते हैं, इनका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है आपके आंसर्स फाइंड करने में, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, एडिशन के लिए आपको कितने सारे लिंकर्स मिल रहे हैं, फर्दर, फर्दरमोर, मोर ओवर, इन एडिशन, एडिशनली, बिसाइड्स, टू, ऑल्सो, अगेन, फर्स्ट, सेकेंड, फाइनली, लास्ट। तो ये सब मुझे बता रहे हैं कि सेम टोन या फिर सेम ही बात को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। अगर मुझे इस तरीके के लिंकर मिल रहे हैं, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, even so, alternatively, at the same time, though, otherwise, instead, nonetheless, conversely, तो ये सारे मुझे क्लियरली क्या बता रहे हैं कि अगर पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव पे मूव हो रहा है, या पहले नेगेटिव था तो अब वो पॉजिटिव पे मूव हो रहा है, करेक्ट। तो ये सारे के सारे जो आपके लिंकर्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये फाइंड आउट करने में कि आपका टोन चेंज कब हो रहा है, ठीक है। तो ये तो देखो, जैसे बात हो गई अग्री डिसएग्री ऐसे की। अब बोथ द व्यूज का भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्योंकि बोथ द व्यूज का जो स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा सा अग्री डिसएग्री से अलग रहता है। उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं इंट्रो, फिर उसके बाद हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 में पॉजिटिव जाता है और बॉडी पैराग्राफ 2 में नेगेटिव जाता है, फिर कंक्लूजन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोन चेंज हो ही रही है, क्लियरली टोन चेंज हो रही है। उसके लिए मुझे कैसे पता चलेगा, लिंकर्स के थ्रू। अभी सारे मैंने आपको कॉन्ट्रास्टिंग लिंकर्स देखो यहाँ पे इतने सारे समझाए हैं। सिमिलरली देखो, ये भी बहुत सारे लिंकिंग वर्ड्स हैं। मुझे फर्स्टली अगर कहीं लिखा हुआ मिल रहा है तो मुझे पता है कि फर्स्टली के बाद सेकेंडली और थर्डली आएगा ही आएगा। अगर एग्जामिनर 3 चीजें नहीं बता रहा होता तो वो फर्स्टली कभी यूज करता ही नहीं। ये मुझे सीक्वेंस बता रहा है कि हाँ, मोर देन 1 चीज की बात हो रही है, तभी तो मैंने फर्स्टली यूज करा है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की बात करनी होती तो मैं शायद एंड यूज करती या नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करती। नॉट ओनली बट ऑल्सो के हेल्प से मैं 2 चीजों के बारे में बात कर सकती थी, एंड की हेल्प से मैं 2 चीजों के बारे में बात कर सकती थी। अगर मैंने सीक्वेंस लगाया फर्स्टली, तो मुझे पता है फर्स्टली के बाद मुझे सेकेंडली मिलेगा, फिर मुझे फाइनली मिलेगा या लास्टली मिलेगा, राइट। तो इस तरीके के लिंकिंग वर्ड्स भी आपको अपने हेडिंग में आंसर ढूंढने में बहुत हेल्प करते हैं। मान लो आपकी हेडिंग बोल रही है फाइंड आउट द थर्ड एडवांटेज, तो आपको ऑटोमेटिकली लिंकर से पता है ना, फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में जाके आपको थर्ड वाला मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वैसे अगर मैं किसी चीज पे एम्फेसाइज कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मैं प्रेशराइज करना चाहती हूँ, तो ये सारे लिंकर हैं। सेम बात को आगे ले जाना चाहती हूँ तो ये वाले लिंकर हैं। ऑपोजिट बात को आगे ले जाना चाहती हूँ तो ये वाले लिंकर्स हैं। प्लीज एक बार सारे के सारे जो लिंकर्स हैं इसको एक बार देख लो। 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, प्लीज इसको ढंग से समझ लीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट डाउन करिए और मुझे बताइए कि हाँ, इसमें से कोई ऐसा लिंकर है जिसका मीनिंग आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। फिर मैं इसके बाद आपको प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन वाला जो एस्से है वो समझाऊंगी, हाउ दैट इज रिलेटेड, और उससे मुझे कैसे हेल्प मिलेगी अपनी हेडिंग्स फाइंड करने में, ठीक है।
आई होप आप लोगों ने ये देख लिया है. 1 मिनट और दे रही हूँ, प्लीज़ इसको देख लो आराम से. Look at this, read every single word and comment down below if you think that there is any connector that you don't know the meaning of or you are unable to use it in your sentence. I will be definitely helping you with that. या तो आप मेरे को डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो पूछने के लिए, या फिर यहाँ पे कमेंट कर दीजिए. अब चलते हैं, देखो आपका प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन क्वेश्चन के लिए. प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन जो क्वेश्चन होता है, आप ये चीज़ हमेशा समझिएगा कि जो ये प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन क्वेश्चन होता है, इसका एक सेट पैटर्न होता है. कभी भी हम प्रॉब्लम का सबसे पहले सॉल्यूशन नहीं डिस्कस करते. हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं बात करूँगी इसका रीज़न क्या है, वाई दिस इज़ हैपनिंग. फिर मैं बात करूंगी इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है. ठीक है, फिर एट द एंड में बात करूंगी सजेशंस या फिर इसके सॉल्यूशंस. ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक पैटर्न है. मान लो आपका कोई रीडिंग पैसेज आपको क्लियरली नाम दे रहा है ग्लोबल वार्मिंग. नाउ यू नो दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अ यूनिवर्स, इट्स अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, राइट. इट्स अ प्रॉब्लम. सो डेफिनेटली इस ऐसे में भी यही पैटर्न फॉलो किया गया होगा. अगर आपको एक हेडिंग में दे रखा था सॉल्यूशन के बारे में, कुछ लिखा हुआ था हेडिंग में, अब आप क्या करोगे, पैरा 1 रीड करोगे, 2 रीड करोगे, 3 रीड करोगे, लास्ट वाला रीड करोगे और फिर जाके लास्ट वाले को मार्क करोगे इसके साथ. बट जब आपको ऑलरेडी टाइटल पढ़ने से ये पता चल रहा है इट्स अ प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन टाइप ऑफ एसे, तो आप डायरेक्टली इसका लास्ट या फिर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ चेक करिए. ठीक है, वहां जाके चेक करिए क्या फ्यूचर वाली टोन मिल रही है, सजेस्टिव टोन मिल रही है, क्या सॉल्यूशंस की बात करी है. यस, डेफिनेटली कर रखी होगी. इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, नो इजंट इट. कितना टाइम आपका ये सेव करेगा, क्योंकि आपने अब सारे पैराग्राफ 1 by 1 रीड नहीं करे. आपने क्या करा है, आपने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया. आपको टाइटल से पता चला ये एक प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन वाला ऐसे है, उसी के जैसा सा पैसेज लग रहा है. सॉल्यूशंस मुझे एंड में मिलेंगे, या तो बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में या सेकेंड लास्ट में. सिमिलरली अगर मुझसे रीजन वाला कुछ बोला गया होता तो मुझे पता था रीजंस मुझे फर्स्ट या सेकेंड पैराग्राफ में मिलेंगे. एक बार अगर इफेक्ट वाला मिल गया तो वो कहीं बीच में मिलेगा. तो इस तरीके से आपका ये जो टोन के बेसिस पे ना राइटिंग स्टाइल, अगर आप रीडिंग का राइटिंग स्टाइल समझ गए कि वो किस टाइप के एसे जैसा है आपका राइटिंग टास्क 2 में, you will definitely be able to solve these questions in no time. आपको ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं पड़ेगा. लिंकर्स पे ध्यान दीजिए, राइटिंग स्टाइल पे ध्यान दीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी आपके मैच द हेडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है बोथ द व्यूज का. Some people think that teenagers should follow the example of older people. Others think that it is natural for teenagers to challenge what elder people say. Discuss both the views. अब मैंने आपको क्या बोला था, क्लियरली आप यहाँ पे देखिएगा कनेक्टर. यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे मुझे फर्स्ट एडवांटेज मिल गया, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लियरली मिला ऑन द अदर हैंड, जाके मुझे दूसरे टॉपिक के बारे में मिलेगा और फिर यहाँ पे कंक्लूजन. सो इसी तरीके से आपका पैसेज भी बना होगा. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी ये बेसिकली थी हाउ योर राइटिंग एंड द रीडिंग मॉड्यूल आर कनेक्टेड विद वन अनदर. अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए. ठीक है, अगर आपको इफ़ यू वांट मी टू पिक एनी अदर टॉपिक जो जिसमें आपको प्रॉब्लम है उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट करिए कि ये एक टॉपिक है जो मुझे नहीं समझ आता मैम, प्लीज़ अपने यूट्यूब सेशंस में वो एक्सप्लेन करिए. आई विल डेफिनेटली बी डूइंग दैट. उसके अलावा अगर आपको मुझसे बात करनी है, दिस इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मुझसे आप बात कर सकते हैं. एंड अगर आपने अभी तक अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, रजिस्टर नहीं किया है, लर्नर्स ऐप आप डाउनलोड करिए, वहाँ पे जाके अपने गोल को IELTS सेलेक्ट करिए. एंड टू अनलॉक द फ्री क्लासेस यूज दिस रेफरल कोड Sonia10. और अगर आपको पेड क्लासेस भी बाय करनी है तो भी ये रेफरल कोड यूज़ करिए फॉर अ 10% डिस्काउंट. हर स्लाइड के नीचे देखो ये कोड लिखा हुआ है और ये दोनों में यूज होगा, अनपेड में भी और पेड में भी. ओके, सो इफ यू डिड लाइक द वीडियो प्लीज give it a thumbs up
And if you haven't subscribed the channel, please subscribe to the channel and press the bell icon so that you do not miss out on any new video which has been uploaded on the channel with any of the educators. Okay, so I will be seeing you in my new video very soon. Till then, please take care and stay safe at your home. Bye bye and take care.